A very good evening to our channel Gyan Prapti Academy CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। आज ही हमारे परसेंटेज का फोर्थ लेक्चर होगा। इससे पहले जो भी परसेंटेज के रिगार्डिंग टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको आई बेल बटन पे मिल जाएंगे। अटैच किया है मैंने डायरेक्ट प्लेलिस्ट है TCS NQT 2025 जो टारगेट है हमारा इस साल का। जो भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है पहले वो वीडियोस देखिए। मैंने आपको फर्स्ट डे कमिट किया था, हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होगा। अगर कोई भी वीडियो आप स्किप करते हैं तो उससे आपको आगे कंटिन्यूटी बनाने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था आज हम उसी को आगे फर्दर इन यूज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैं एक बार रिकैप कर दूं फिर मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि if a number is increased by a upon n, if a number is increased by a upon n, to regain this number, a number must be decreased by a upon n plus a. That is a general form. और बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया था सपोज अ नंबर इंक्रीज बाय 1 अपॉन n, then number must be decreased by 1 upon n plus 1. Got it? Where a indicated here plus 1 might be if a numerator becomes 2 then number added plus 2. If a numerator become 3, suppose if I write 2 upon n, if a number increased by 2 upon n then number decreased by 2 upon n plus 2. That's why in a general terminology I just noted down if a number increased by a upon n then number decreased by a upon n plus a. Got it guys? Already we have discussed this concept in a previous lecture. Those guys who just skip the last lecture or does not watch the previous lecture must be solve and just get an idea how to solve the question. Now today we started the same concept and so try to solve the question in a minimum time. For the question, if the price of a article has increased by 25%, अगर किसी भी article का price 25% से increase करता है, what is the fraction value of 25%? That is 1/4. यानी कि number 1/4 से increase किया है। Got it? By what percent must a consumer reduce the consumption of an article so that not increase the expense? उसको expense increase नहीं करना पड़ेगा। Basically मैं आपको क्वेश्चंस को बनाने से पहले रिलेशन और भी बता देता हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है। ठीक है, इफ जस्ट एज्यूम एक्सपेंस एज अ कांस्टेंट, एज्यूम एक्सपेंस एज अ कांस्टेंट और बोलो रिमेन सेम, then it directly indicate that price directly sorry indirectly proportional to quantity. It means if a price increase then your quantity decrease, or if your price decrease your quantity increase. Got it? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सपोज कीजिए यू हैव 100 रुपीज, ठीक है ना, आपने 20 रुपए का 20 रुपए वाली पेन कर दी है, देन हाउ मच यू गेट, यू जस्ट सेव 5 पीस, 5 पीस मिलेगा आपको। ठीक है, सपोज दैट पेन प्राइस इन डिक्रीज बाय 10 रुपीज एंड नाउ द न्यू प्राइस बिकम 10 रुपीज। ठीक है ना, नाउ अब आपको कितना मिलेगा, 10 पीस मिलेगा, दैट विल बी 10 पीस। ठीक है, दैट विल बी 10 पीस, here will be 5 pieces. It means how if a price decrease your quantity increase. And take another example, suppose the price increased and it now becomes 25 rupees. ठीक है, now what will be happen, your quantity will decrease, now it becomes 4। ठीक है ना, it will decrease। तो what we observe, if our expense will constant, then if we increase the price our quantity decrease, or if I just increase our decrease our price our quantity increase. Now what we do here, we just use the same concept we have earlier discussed in our classes. Now we try to solve the question in a minimum time. Now here what we observe, the price increased by 25%. 25% it means that is 1/4. If a value increased by 1/4 to re- to uh, to reduce the consumption, ठीक है ना, such that expense does not increase. It means if a number increased by 1/4 then number must be decreased by 1/5. And what is the percentage value of 1/5? That is a 20%.
ठीक है। अगर आपका प्राइस 25% से इंक्रीज किया है तो कंजम्पशन को कितने परसेंट से डिक्रीज करेंगे कि एक्सपेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एक्सपेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है 1/4 होता है। ठीक है। तो अगर 25% 1/4 है, अगर 1/4 से वो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कितने से करेगा 1/5 से, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 20%। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज अ 20%। नाउ कम टू द नेक्स्ट। if the price of a pulse is raised by 40%, ठीक है ना, again in this question the price of a pulse raised by 40%. Now what is the percentage value, sorry, what is the fraction value of 40%? Might be some of the students have an idea, that is 2/5. अगर किसी बच्चों को डिफिकल्टी होती है तो आप ध्यान रखिएगा, वी हैव whenever we discuss about the percentage table, here we discuss 20% is equal to 1/5। ठीक है ना, जहां पे मैंने आपसे परसेंटेज टेबल डिस्कस किया था वहां मैंने बताया था कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है। अगर मुझे इस 20 को 40 बनाना है तो जस्ट सिंपली व्हाट आई डू, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम्स 40%। नाउ सिमिलरली if I just multiply by 2 in LHS, then must be multiply in RHS. Now this value becomes 2/5। तो 40% is none of sorry, 40% is but the 40% is what, that is 2/5, sorry, 40% is what, that is 2/5। now here what we observe guys, a value is increased by 2/5, value is increased by 2/5। अगर वैल्यू 2/5 से इंक्रीज कर रहा है then value must be decreased by 2/7, then value decreased by 2/7। and what is the value of 2/7, that can be easily write as a 2 into 1/7। और सबको पता है 1/7 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 14.28%, दैट इज नथिंग, दैट इज 14.28%। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी गेट 28.56%। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 28.56% हो जाएगा। गॉट इट गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूं लेकिन मुझे इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी ले लीजिए, आर्टिकल ले लीजिए, सब कुछ सेम है। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीज्ड बाय 8.33%। इस बार वैल्यू आपकी डिक्रीज की है, कितने से की है डिक्रीज, 8.33% से डिक्रीज की है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कंजम्पशन को, ठीक है, कितने से इंक्रीज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कंजम्पशन को कितने से कितने परसेंट से इंक्रीज किया जाएगा। उसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, उसका रिजल्ट ये मिलना चाहिए कि आपके एक्सपेंस पे, आपके एक्सपेंस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपके एक्सपेंस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ टी rises from 60 पर केजी टू 75 पर केजी। ठीक है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज किया है 60 रुपीज से, चेंज होके कितना हुआ 75 रुपीज कन्वर्ट हुआ है। मतलब इनिशियल चेंजेस कितने रुपए के दिख रहे हैं मुझे, 15 रुपए के चेंज दिख रहे हैं। ठीक है, 60 से 75 के लिए प्राइस ऑफ चेंज कितना हुआ है, 15 रुपए आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इस बात को मैं ध्यान रखना। ठीक है, इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, अगर मुझे एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना है तो बताइए द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द कंजम्पशन इज व्हाट। देखो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक्सपेंस इंक्रीज नहीं करना है, तो बच्चों को लगता है कि हमारा बेस डेटा ये है, तो वो जनरली सॉल्व कर लेते हैं 15/60 मल्टीप्लाई बाय 100, और वो अब यहां से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर 25% बोलेंगे, और नो डाउट वो आपके ऑप्शन में भी अवेलेबल है। पर ध्यान रखिएगा ये गलत आंसर है, बिकॉज अब समझो, जब आपके पास 60 रुपीज था, जब इस एलिमेंट का प्राइस 60 रुपीज था, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, उतना तो आपके पास था ही पैसा। लेकिन जैसे ही ये 60 से 75 रुपीज हुआ और आपने कहा कि इक्विपमेंट या एलिमेंट का प्राइस 15 रुपए इंक्रीज हुआ है, ये बात जब आप कह रहे हो 15 रुपए इंक्रीज हो रहा है, उस समय जो एलिमेंट का प्राइस है वो 75 हो गया है। मतलब जब आप अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे उसके लिए जो प्राइस रिस्पॉन्सिबल होगा वो 60 नहीं है, उसके लिए वो प्राइस 675 होगा।
उसके लिए प्राइस क्या होगा 75। तो व्हाट योर इक्वेशन 15/75 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से सॉल्व करेंगे आपका करेक्ट आंसर आएगा 20%। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बहुत सारे बच्चों को शायद कंफ्यूज करे, तो मैं एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। आप ऐसे एज्यूम करना, आप सपोज करो अगर आप पेट्रोल पंप पे विजिट करते हो, अगर आप पेट्रोल पंप पे विजिट करते हो, ठीक है, और सपोज आपको पता है कि अभी मान लेते हैं कि एज्यूम कि 100 रुपीज पर लीटर अभी पेट्रोल की वैल्यू है, ठीक है। अगर आप 100 रुपए ही लेकर जाते हो तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये मुझे 1 लीटर तो दे देगा, ठीक है, ये आपको 1 लीटर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आप आज 100 रुपीज में 1 लीटर लाते हो, अब आपको पता नहीं हुआ कि भाई इसका प्राइस बढ़ा है, और अगले दिन जब आप जाते हैं, ठीक है, और इसकी प्राइस 120 रुपए पर लीटर हो जाता है, कितना हो जाता है 120 रुपए पर लीटर हो जाता है, गॉट इट गाइस, 120 रुपए पर लीटर हो जाता है। तो अब अगर आप उसको 100 रुपीज ही देंगे, मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि भाई वो अपने एक्सपेंस को चेंज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, तो वो 100 रुपीज ही दोगे आप। तो 100 रुपीज देंगे तो ऑब्वियस वाली बात है कि जो आपको इक्विपमेंट क्वांटिटी मिलेगी वो 1 लीटर से कम मिलेगी। तो ये 1 लीटर से क्वांटिटी कम मिली, इसके लिए 100 रुपया जिम्मेवार थोड़ी ना था, जो नया प्राइस आया है वो जिम्मेवार है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है ना। दैट्स वाई फ्रैक्शन के नीचे में जो डेटा बनेगा डिनोमिनेटर, वो वैल्यू बनेगी जो आपकी नई प्राइस वैल्यू होगी। गॉट इट गाइस, होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नहीं होगा तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देखिएगा। फिर भी कोई इश्यूज है तो मैंने आपको बता भी दिया है कि हम संडे के दिन स्पेशल क्लासेस आपके डाउट सेशन के लिए रख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे अपनी क्वेरीज मुझे पहले व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस शेड्यूल करूंगा। अभी मैंने टेंटेटिव टाइमिंग दिया है, वीडियोस आपके पास आया होगा प्रमोशन वीडियोस के फॉर्म में। अगर आपको वो टाइम में इश्यूज आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने अवेलेबिलिटी बताइए, उस अकॉर्डिंग में बाकी दूसरे क्लासेस को आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। गॉट इट गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि द प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री डिक्रीज्ड बाय 15.78%। किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो 15.78% डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि जो सीनियर एम्प्लॉय है उनकी रिटायरमेंट हो गई है। तो चलो इससे में तो कोई मतलब ही नहीं। 15.78 का अब मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि 5.26% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दैट विल बी 1/19, दैट विल बी 1/19। तो आप देखिए ये इसका 3 टाइम्स है, ये वैल्यू आपकी क्या है 3 टाइम्स है। तो सिंपल सा मतलब है कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा 3/19 होगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/19 होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 3/19 से अगर कोई वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज कितने से करेगा 3/16 से वो इंक्रीज करेगा। किससे इंक्रीज करेगा 3/16 से। और सबको पता है कि 1/16 की वैल्यू कितनी होती है 6.25% होती है। तो अगर मुझे 3/16 की वैल्यू निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। योर करेक्ट आंसर इज 18.75%। योर करेक्ट आंसर इज 18.75%। ये आपका आंसर होगा। गॉट इट। ऐसे भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2 ही ऑप्शन था जिसमें से आंसर होना चाहिए था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर 15.78% से अगर कोई वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो इंक्रीज जब भी वैल्यू करेगी, जब भी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आंसर इससे ज्यादा होना चाहिए, आंसर इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, उससे वो वैल्यू छोटी है, ठीक है, वो वैल्यू से छोटी। तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो दोनों में से फिल्टर करना था। सॉल्यूशन तो वैसे भी मैंने करके दे दिया है, नियर बाई ऑप्शन था इसलिए सॉल्यूशन करना थोड़ा जरूरी था। गॉट इट गाइस। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ ड्यूटी ऑन आर्टिकल रिड्यूस बाय 60%, अच्छा यहाँ पे छूट गया, टू इट्स प्रेजेंट रेट होगा, यहाँ पे टू होगा, टू इट्स प्रेजेंट रेट, ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज इन ऑर्डर टू दैट द रेवेन्यू रिमेन्स अनअल्टर्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपका प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी ऑफ आर्टिकल है वो रिड्यूस किया 60% से। अब आपको ना ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगर 60% से रिड्यूस कर रहा है तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना और फिर बताना कि कितने वैल्यू से ये इंक्रीज करना चाहिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो
जो हमारा रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जिनका इनिशियल और फाइनल के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक है, चेंजेस के बाद जो रिजल्टेंट डेटा आ रहा था वो 1 आ रहा था, उसके ऊपर मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम क्वांटिटी कंपैरिजन करके भी बताया है मैंने, फिर अभी मैंने आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताया, मतलब अगर देखा जाए तो आई थिंक तीसरा और चौथा जो वीडियो है वो इसके ऊपर है। तो एक बार आप उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से देखिए, कोई भी कंफ्यूजन होता है वीडियोस को दोबारा एक बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके सारी क्वेरीज को क्लियर करूंगा। तो गाइज ये वाला पैटर्न यहाँ खत्म होता है, ठीक है। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।